جی جی، سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ لوگوں کا تو یہ ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو آپ کے پیشاب اور پخانے سے اپنا علاج کیا کرتے تھے، اپنے منہ پہ مل لیا کرتے تھے، ان سے وضو کر لیا کرتے تھے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آپ یہ اعتراض مرزا غلام احمد قادیانی پر کس طرح کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ سمجھا دیں. نہیں مربی جی، اصل میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کی پیش گوئی ہے، پیش گوئی کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، لیکن وہ مکے مدینہ تو اس کو دیکھنا تک نہیں نصیب ہوتا. سوال اصل یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس کو مکے اور مدینے میں مرنا چاہیے تھا. مرزا قادیانی خود اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں کہتا ہے، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 15 کے اوپر وہ کہتا ہے، سنیے گا مربی جی، اب جائیے گا نہیں، جواب دے کے جائیے گا. اگر میں اس پیش گوئی میں کاذب نکلا تو ہر یک سزا کے بھگتنے کے لیے میں تیار ہوں، اور اس بات پر راضی ہوں کہ مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے، اور باوجود میرے اس اقرار کے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے، زیادہ اس سے کیا لکھوں. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ایک پیش گوئی بھی کسی کی جھوٹی ثابت ہو جائے تو وہ بڑی رسوائیوں میں سے ایک رسوائی، سب سے بڑی وہی رسوائی ہے، کافی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور کہتا ہے میرا کتوں کی طرح میرے گلے کے اندر رسا ڈالو، اگر میری پیش گوئی غلط ثابت ہو جائے تو مجھے سولی پہ چڑھا دو. یہ تو مرزا قادیانی کی پہلی سٹیٹمنٹ ہے اپنی پیش گوئیوں کے بارے میں. اگلی سٹیٹمنٹ ملاحظہ کیجئے، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 288 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے، بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہے. وہ کہتا ہے میری جو پیش گوئیاں ہیں یہ لیبارٹری کی طرح ہیں، کہ ایک لیبارٹری کے اندر جب آپ کوئی چیز جا کے ٹیسٹ کرتے ہیں تو مجھے ٹیسٹ کرنا ہے میرا صدق یا کذب، مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے، تو اس کا معیار میری پیش گوئی ہے. اگر تو میری پیش گوئیاں سچی ثابت ہو جائیں تو میں سچا، اگر میری پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہو جائیں تو میں جھوٹا. اگلی بھی بات سن لیں، روحانی خزائن جلد 19 ہے، صفحہ 5 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے، اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹال جائیں، اور نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدہ کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے. اب یہ 3 قسم کی سٹیٹمنٹ مرزا قادیانی کی آپ کے سامنے ہیں مربی جی، دیکھ لیں. آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر تو مرزا قادیانی کی یہ والی جو پیش گوئی ہے کہ ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں، اگر تو سچی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، بتا دیں کہ بھائی مرزا قادیانی مکے میں مرا ہے یا مدینے میں مرا ہے. دوسری بات مرزا قادیانی کی اس بات کی تعویل نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے جی، تعویل نہیں کر سکتے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نبیوں کی جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. مرزا قادیانی نے نہیں سی کیا ہوتے کہ نبیاں دیاں جڑیاں پیش گوئیاں ہوندیاں نے اودی تعویل کر لیا کرے آج، نہیں ٹلدیاں نہیں ہوندیاں. پھر وہ تو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے میرے گلے میں کتوں کی طرح رسا ڈالو، مجھے کسیٹو ہے جی، تے مینوں سولی دے دیا جے. کسی انسان دا جھوٹا ہونا سے نہیں کافی ہوندا ہے کہ وہ صرف جناب اودی پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو جائے. ہاں جی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی؟ مائک میوٹ ہٹائیے. جی جی، نبی جو ہوتا ہے نا وہ خدا نہیں ہوتا، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا بھی ایمان ہے. اب مجھے اپنی کمپلیٹ کر لینے دیجیے گا. یہ جو سورہ بقرہ میں 258 آیت ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا وہ جو ہے مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو نمرود نے آگے سے اس سے پہلے یہ دلیل دی کہ میرا خدا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. سوال میرا یہ قرآن کی آیت ہے کہ نمرود نے یہ کہا کہ میرا خدا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں. کیا نمرود واقعی زندہ کر دیتا تھا؟ اگر وہ واقعی زندہ کر دیتا تھا، ایک منٹ دیکھیے، آپ خلط مبس کر رہے ہیں محترم، خلط مبس کر رہے ہیں. میں نے سوال چنا کیا ہے، اب جواب گندم ایسے تو نہ کرے. میں سوال کوئی اور کر رہا ہوں، مجھے لے گئے نمرود کی شداد کی طرف. کیونکہ
वो तो चना देखिए और गंदुम, ये जो चना और सांस गंदुम है ना, ये कुरान में मौजूद है। सांस ले लीजिए, कुरान में कोई जी, मौजूद नहीं है कि मिर्जा कादियानी इमाम मेहदी होगा और वो लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मरेगा। सुने जरा, कुरान एक लिटरेचर है, लिटरेचर के रंग में बात करता है। लिटरेचर नहीं है ये, कुरान है, कुरान अल्लाह का क्यों? कलाम अच्छा, है। फिर मेरे को वो रस्सी दिखा दें जो आसमान से लटक रही है। जी सुने जी, रस्सी भी जी दिखाते हैं जी। आपको। मिर्जा जी ने वादे तौर पे स्टेटमेंट दी है, हम मक्के में मरेंगे या मदीने में। वो हम्म, लाहौर में टट्टी मूत्र करते मर गए हैं 26 मई को। हाँ, हजरत फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मैं हज करने जाऊंगा, तो क्या हज की इजाजत मिल गई थी? क्या आप हज करके नहीं, आ तो गए थे? हज का तल्लक मिर्जा कादियानी से नहीं है बाबा। देखिए आप मुझे ये नबी बताइए, खुदा नहीं होता। ये मिर्जा कादियानी की अभी मैंने ये स्टेटमेंट आपके सामने कही है कि वो कहता है मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाएं, और आप ये मुझे भी ये याद बताएं, रहे कि कौन हमें सा इस ऐसा इलाही नबी वादा है के जिसने मुकाबले, खुदा दिखा दिया? इस इलाही वादा के मुकाबले इंसानी तदबीरों से परहेज करना चाहिए। आप इंसानी तदबीरों से परहेज ही नहीं कर रहे। तो मेरे वो भाई मिर्जा मुझे कादियानी ये खुद कह बताएं, रहा है कि इंसानी तदबीरों से परहेज करें, तो आप तदबीरें इख्तियार कर रहे हैं, आप उसकी तवीलें कर रहे हैं। आप आप तो इस्लाम को ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे आप दो जमा इंसानी दो। तदबीरें अगर क्यों आप इख्तियार इतने कर रहे हैं? होशियार हैं तो इंसानी इतने तदबीरें क्यों इख्तियार मुसलमान जो कर हैं रहे वो हैं? एथियस्ट क्यों हो रहे हैं? मेरी ना मनो, मिर्जा जी ती ते मान लो कम अज कम। ओ मिर्जा जी दी ते मैं मान लांगा, मैनू ए दसो मुसलमाना ने 1200 साल तक आप कुरान मुझे का ये तर्जुमा बताइए, क्यों नहीं किया? इंसानी तदबीरें क्यों इख्तियार कर रहे हैं आप? मिर्जा जी ने आपको रोका है कि इंसानी तदबीरें नहीं, नबियों की पेशगोइयां नहीं टलती। तो ये कैसे टल गई है जी? हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, वो लाहौर में टट्टी मूत्र करते मर गए हैं। तो टट्टी मूतर करते हुए आप नबियों का टट्टी मूतर खा खा के अपनी शफा नहीं, लेते वो रहे तो हैं। आप गुस्सा खा आपको गए तो हैं, खुश होना आप चाहिए। गुस्सा खा गए जहीर साहब, आप गुस्सा खा गए। मेरी नहीं गल का नहीं, जवाब नहीं गुस्सा नहीं दिया। खा गया, हाँ, गुस्सा नहीं ये खा गया। तदबीर, आप इंसानी तदबीरें आप क्यों इख्तियार कर रहे हैं? वो मिर्जा जी मेरे ने आपको भाई, रोका है कि इंसानी तदबीरें इख्तियार नहीं करनी। कुरान एक किताब है जो कागजों पर ठीक है, नहीं नाजिल हुआ, तो इसका मतलब कुरान पढ़ लो लिटरेचर है। इधर इधर जाओ, मैं तो उस मौजूद पे जान ही नहीं देना इधर उधर। मिर्जा जी फरमा रहे हैं कि नबियों की पेशगोइयां नहीं टलती, और जब नबियों की पेशगोइयों के ऊपर तुमने इंसानी तदबीरों को इख्तियार नहीं करना, मतलब तवीलात नहीं करनी है, वो अपनी जाहिरी रंग के ऊपर ही रहेंगी। मिर्जा कादियानी ने पेशगोई की हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, लेकिन मक्का मदीना उसको देखना तक ना नसीब हुआ, और वो लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते मर गए। वो मेरे भाई, आप ये जितने एतराजात कर रहे हैं आपकी बेसिक ही नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या बताए ना नबी को, बेस क्या है? वो नबी को क्या ऐसी कोई आप नमाज लोगों सिखाई का बेस जाती है? क्या है? मुझे आप बताएं ना, आप नबी को कोई ऐसी नमाज सिखाई जाती है कि वो नमाज पढ़े और बच्चे के खतने हो जाएं? लेकिन नहीं, नमाज इस्तिस्का सिखाई मुसल जाती से है। बस ना करो इधर उधर, मैनू ना, मैं उधर वो जाने इधर नहीं है। उधर है, सब मैं कुछ नहीं जाना, मैं एक होर मौजूद एक किसी नुक्ते से ही, नहीं नहीं, मेरी एक आदत है। नुक्ते से ही ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ 360 ਦਾ डिग्री ਤਰੀਕਾ के ਹੁੰਦਾ एंगल कि निकलते मुझे हैं। चुक के इधर उधर ले जाओ। मैं इधर, आज की स्ट्रीम है ही मिर्जे कादियानी के 26 मई टट्टी डे के हवाले से है। मैंने इधर उधर ज़हीर साहब आपको जाने ही नहीं देना। वो कर लो तुसी जिधर ते मर्जी उस जाओ। टट्टी ना शफा पा रहे जे, गल्लां की कर रहे जे मेरे मिर्जा ना। जी की टट्टी नाल जी, वो मैनू पता तुसी चलिया। शफा पा रहे जे। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡਾ ईमान है नबियां दी टट्टी ते पेशाब ना ईमान लेना। ओहो, मिर्जे कादियानी तुसी दी कित्थे टट्टी इतराज करोगे, ऐ दसो मैनू। वाह भाई वाह, ए मैनू नहीं गल पता। अच्छा, या वो आई थी बाजी चंदा भी आई थी, वो भी बता रही थी कि वो मिर्जा कादियानी जहाँ पे टट्टी मुतर किया करता था, बैतुल दुआ बनाया हुआ है कादियान के अंदर आप लोगों ने, उधर वो हम्म, लाइन लगी होती है 1 मील 2 मील लंबी, तो वहां हाँ हाँ जाके आप लोग शिफा लेते हैं, और हाँ, लड़कियां लड़के उसके अंदर 2 नफल भी पढ़ते हैं, जैसे हम्म। रियाज जन्ना के अंदर लोग दाखिल होते हैं। तो फर्क क्या रह गया, बताओ मुझे, आहो तो फर्क क्या दसना, रह वो गया? तो दसना, मैं तो नहीं दसना, मैं तो नहीं, लानत पाना भाजी। तो वो कौन सी बड़ी बात है? हर नबी पर लानत भेजी गई है, कुरान ने तो उनको आयात बनाया है। जो जो अच्छा, एतराजात मुल्लिद हजरात कर भाई रहे हैं, इधर कुरान में देखिए, नबी 100 के तो करीब दुश्मनों को आयात सिखा हैं। रहे हैं, ठीक है भाई। देखिए आपने नबी मान लिया ना, तो नबियों की जी जी। पेशगोइयां नहीं टलती है ना। तो भाई मिर्जा जी खुद फरमाते वो हैं नबियों नबी की इसलिए पेशगोई कि नहीं नबी टलती। खुदा नहीं होता। कैसे टल गई है ये पेशगोई? नबी खुदा नहीं होता, नबी की पेशगोई कैसे टल गई है? मिर्जा जी फरमा रहे हैं क्योंकि नबी वो खुदा नहीं होता। ठीक है ना, नबी खुदा नहीं होता, लेकिन वो जी, कहते हैं नबियों की पेशगोइयां नहीं टलती। हजरत यूसुफ ने जो ताबीर की, वो हाँ तो बादशाह की ख्वाब थी। हाँ, टल बादशाह गई। तो वो उन नहीं, पर ईमान भी नहीं रखता था। ਤੁਹਾਡੇ बकौल वो टल गई, ऐसा ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसकी हाँ ना, ताबील की हाँ गई ना है, तो करे, हाँ ना वो तो करे, ताबील की गई ਤੁਹਾਡੇ है। बकौल वो टल गई है। वो गाय जो थी, उसने गाय को तो नहीं खाया मिर्जा जी सेहतमंद ने ने। किए, ओए मिर्जा जी ने ये मुतलक इरशाद फरमाया, अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक के ऊपर जारी होता है, मुतलक को मुकय्यद नहीं करते। ठीक है, मिर्जा जी ने मुतलक कहा है, मुमकिन नहीं कि नबियों की पेशगोइयां टल जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब उसकी तवीला करके तो कुछ ना कुछ बना दिया जे, नहीं।
नीज ये भी याद रहे कि हमें इस इलाही वादा के मुकाबल इसलिए इंसानी तदबीरों से परहेज करना चाहिए। ये जो है ना कि इसके मुकाबल में इंसानी तदबीरों से परहेज करना चाहिए से मुराद ये तवीलें नहीं करनी चाहिए। वो ज़ाहरी तौर पे मिर्जा कादियानी ये कह रहे हैं कि जो नबियों की पेशगोइयां होती हैं वो ज़ाहरी रंग में होती हैं, उनमें तवील नहीं होती। आप बार बार तवील 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 तो तवील ये बताएं कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के मुतालिक और क़यामत के मुतालिक सवाल किया गया तो कुरान पे ये आयत क्यों नाजिल हो गई कि इसके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं दिया गया? मुझे ये बता दें, ये तावील नहीं है क्या? मिर्जा कादियानी को झूठा साबित कर रहे हैं, यानी क्या? मिर्जा ने झूठ बोला है और मुरब्बी जी को बात समझ आ गई, ये मिर्जा जी को समझ नहीं आई, ऐसे ही है? ओ मेरे भाई, अपने हाथों आप खुद मिर्जा जी को झूठा साबित कर रहे हैं मुरब्बी जी। ओ मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ मिर्जा जी की तालीम क्या है। मिर्जा जी को अगर आपने क्या फरमाते हैं आप सुने, जरा गौर कीजिए। मैं आप भी मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़ के सुनाते हैं ना, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो सुन लें। मैं तहरीरां खोला, तहरीरां दी ते गल ही नहीं हो रही। मिर्जा कादियानी दी अज मौत दा तज़किरा हो रहा है। मुरब्बी जी मौजू पढ़े ने साडे कोल, लखां मौजूआत ने। फिर कदी किसी मौके ते बह के असीं तहरीरां भी पढ़ांगे, इधर भी पढ़ांगे, उधर भी जावांगे। आज तो मिर्जा जी की टट्टी दा मुअम्मा है, हल करो। फरमांदे ने मैं मक्के च मरना सी या मदीने च, लेकिन लाहौर टट्टी मूत्र करदे मर गए ने। सुनो 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 होर सुनो, और टट्टी दी स्मेल सुनो, मैं तुहानू वो स्मेल सुगाना है। अच्छा सुनो, बुतों की परस्तिश और झूठ बोलने से परहेज करो, यानी झूठ भी एक बुत है। हाय 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 हाय, वो सुनो तो सही, मेरी बात सुनो। जब तुम कुरान को दुनिया के सामने पेश करते हो तो सूरह अनाम की आयत नंबर 7 पहले रखनी पड़ेगी, सूरह रात की 31 नंबर आयत पहले रखनी पड़ेगी कि कुरान किस साइंस के अंदर नाजिल हुआ है। सुनो सुनो, आयत नंबर अनाम नंबर 7, कुरान को हमने कागजों पे नहीं नाजिल किया। सूरह अनाम आयत नंबर 7, कुरान को हमने कागजों पर नहीं नाजिल किया। वो हर नबी करता रहा है टट्टी मूतर, तुम तो उससे शफा लेते रहे हो। 100 दफा, हाँ तुम तो शफा लेते रहे हो उससे। हाँ तुम तो शफा लेते रहे हो। अल अनाम खोल लेना, एक मिनट ठहरो जरा। हो सकता है कि तुम्हारे खानदान की, मिर्जा जी तुम्हारे खानदान में खानदान की जिंदगी भी उसी शफा से जो है वो कायम रही हो। वो थोड़ा सा साबित लो, सूरह अल अनाम खोल लेंगे मैं, और आयत 7 नंबर आयत, 7 नंबर आयत। एक मिनट ये, अच्छा जी मुरब्बी जी, वलो नज़लना अलैका, थोड़ा जा नेड़े नेड़े हो, हाँ जरा एक मिनट ठहरो। मैं खोल लिया कुरान, लो जी सूरह अल अनाम आ गई है, और मुरब्बी जी फरमा रहे हैं कि आयत नंबर 7 है। ठीक है जी, आयत नंबर 7 आ गई है जी। वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी किरतासिन फला मसूहु बिअयदीहिम लकालल्लज़ीना कफरू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। इत्थे किथे मिर्जा जी दी 100 दफा टट्टी मूत्र दा जिक्र ते है ही नहीं। ओ मुझे ये बताओ कि अगर नबी पर मैं रोक के तां ही पढ़ना पिया कि पता नहीं केड़े लफ्ज दा तर्जुमा है। ओ सुनो तो सही, अगर नबी नू कागजां दे अंदर कुरान दिता ही नहीं गया ते ईमान किदे विच लेके आए जे? भाई दसो ते जने तुसी गप क्यों मारी, पहले ते दसो ना, गप क्यों मारी जे जी मिर्जे दी टट्टी मूत्र दा जिक्र कुरान दी सूरह अनाम दी आयत नंबर 7 च। ओ मेरी गल नहीं समझ आई। नबी नू कोई चीज मादी शक्ल दे अंदर ते जिस्मानी शक्ल दे अंदर कदी नाजिल ही नहीं हुई। पहले मैनू दसो तुसी मिर्जा जी दी टट्टी मूत्र नू तुसां साबित करना से गप क्यों मारी जे? कुरान दी आयत दा हवाला ते दसो, गप क्यों मारी जे पहले? ओ तो यार, ओ कुरान की बेसिक लॉजिक तुमको समझाई है। नहीं वो ना सही सब आपने, ये वो साइंस है, ये वो साइंस है जिस पर कुरान का नजूल हुआ है। ये सब इतने बड़े आप हो गए समझदार है, क्यों गप्पा मारते हो यार? अच्छा अब ऐसा करो, सूरह रात निकाल लो, 31 नंबर आया। अच्छा ओदे च जिक्र है सूरह रात दे विच। हाँ दिखाता हूं। ना होवे फिर गप मारी ना ते तुहानू पा लेने लम्मे, फिर पूरा तर्जुमा पढ़ के बताना। चले एक मिनट ठहरो। सूरह रात दी आयत नंबर कितनी जे? 31 नंबर। 31 नंबर, एक मिनट। हाँ 13-31 ठहर जो जी, इधर थोड़ा जा सब्र साल हो ना जी, तर्जुमा पढ़ के सुनाना ताकि लोगों को फायदा होवे। तर्जुमा भी दसना वा जी, एक मिनट मैं जरा स्क्रीन शेयर कर ला। ते लो जी सारे नेड़े नेड़े हो जाओ, मुसलमानों तुसी भी आ जाओ।
आ जाओ कादियानी दे टट्टी मूतर दा जिक्र अज मुरब्बी जी ने कुरान च बहाना है। लो जी 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 सूरह जी जी रात की आयत नंबर 31। आ अच्छा जाओ। तर्जुमा कंजुल ईमान अल्लाह हज़रत फरमाते ने कि जनाब और अगर कोई ऐसा कुरान आता जिससे पहाड़ टल जाते या जमीन फट जाती या मुर्दे बातें करते, जब भी ये काफर ना मानते बल्कि सब काम अल्लाह ही के इख्तियार में है, तो क्या मुसलमान इससे ना उम्मीद ना हुए कि अल्लाह चाहता तो सब आदमियों को हिदायत कर देता और काफरों को हमेशा के लिए ये सख्त धमक हला देने वाली मुसीबत पहुंचती रहेगी या इनके घरों के नज़दीक उतरेगी यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आए। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। फिर गप मार छड़ी है वो इतने कितने नहीं मिलते अगर अगर कुरान की आयत में ये ताकत नहीं है तो नबी में कहां से आ जाएगी? पै जाओ लम्मे पै जाओ तुसी पढ़ाई लित्र मैनू यार। हाँ हाँ कर बात यार क्या? सही सब दोबारा पढ़ो दोबारा पढ़ो। यही वजह है कि मुसलमान को सजदे में कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। कुरान की आयत कोई जंतर मंतर नहीं है। साहब ये ना इजाज साहब बैठे हैं, ये एक्स कादियानी है, नो मुस्लिम है, ये आपकी बोली भी जानते हैं। जरा इजाज साहब आप बात कीजिए। अच्छा एक बात जी करो इजाज साहब को लेके आओ। ये जो जितने हैं ना, जितने अहमदियत को छोड़ के गए हैं, इनसे सिर्फ एक बात पूछना, उनको ये कहना कि जो जमाते अहमदिया डिफरेंट तफसीर करती है कुरान की, क्या वो सब उन्होंने वो खत्म कर दिया, सबको अलग कर दिया साइड से? ये क्या वजह है कि आप हल भी तो कटो ना यार दे साहब के हम मक्के में मरेंगे या मदीने में, की चक्कर है रोला की ओ हल एवा के तानू कुरान दी अलिफ बे भी नहीं पता। 1200 साल तक तुसी कुरान दा तर्जुमा ही नहीं किता ना जी, तुसी सिखाओ ना ओ तर्जुमा ही नहीं किता तुसी कुरान दा यार। सही है ना जी, तुसी करो ना जी, तुसी सिखाओ ना सानू, तुसी क्यों नहीं सिखांदे? ओ कुरान सब तो यही ऐसे वास्ते ते सूरे रात सिखाई है तानू के कुरान दी आयात जंतर मंतर नहीं है, नबी कोई। अच्छा एक और मिसाल देता हूं तुमको, गौर से सुनना, गौर से। जब आप बच्चे को ये लॉजिक देते हैं कि हजरत इब्राहिम ने सारे बुत तोड़ दिए और एक बुत को खड़ा रहने दिया, और फिर आपने ये उन्होंने बाप को ये दलील दी कि ये बुत ना बोलेगा ना सुनेगा ना अपनी मदद करेगा, ठीक है कि नहीं? बच्चे को ये लॉजिक देते हैं ना। अब मुझे ये बताएं कि आपने फिर उसके बाद उसकी ये तफसीर की कि हजरत इब्राहिम ने परिंदों का कीमा कर दिया और उनको डिफरेंट जगह पे रख दिया। और जब एक मिनट माजरत यार, अच्छा एक की रोला कि ये मिर्जा जी नु जदों 25 ते 26 नु मिर्जा जी नु ਜਿਹੜੀ और टट्टी मूतर शुरू हो गई सी ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਟੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ? ਹਾਂ 25 ਤੇ 26 ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੀ ਟੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣ ਲਈਏ ਬਹਿ ਕੇ, ਗਿਣੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਸੀਰਤੁਲ महदी जिल्द अव्वल सफा 9 10 11 12 ਇਹ ਚਾਰ ਸਫੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਆ। मैं कुरान से साबित करता हूँ। चलो ठीक, कुरान से चलो हो गए। पहले ना इफ्तिखार चीमा साहब ने कोई तादाद दसी, ये ने 4 टट्टियां सन। कुरान की आयत है कि मेरे नबियों को और फरिश्तों को खुदा मत बना लेना। एक मिनट जी, इसमें क्या बुराई है? यानी तो लाखों बंदे असहाल यानी टट्टियों की मौत से फौत होते हैं, इसमें क्या बुराई है? यानी टोटल 4 साल आए हैं आपको, 2 आपने जाके बैतुल खुला में खुद किए, अच्छा तीसरा बी बेड के पास और चौथा भी बेड के पास इंतजाम किया गया है। अच्छा 4 टोटल आपको असहाल आए हैं, 10 अच्छा। उस रात 4 टट्टियां और एक उल्टी आई है, टोटल 5 ये मसले। 5 टट्टियां उसके हो बाद गया आप 4 पाई पर रात को 3 बजे चले जाते हैं, लेट जाते हैं और सुबह 10 बजे आपकी वफात हो जाती है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को 4 दफ़ा उस रात टॉयलेट में जाना पड़ता है, 2 दफ़ा बेड के पास उसका इंतजाम किया जाता है, तो ये कोई बुरी मौत है? 4 दफ़ा तो जो नौजवान है इसको भी पेट खराब हो जाए तो इसका भी 4 दफ़ा मसला हो जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें आपको बुरी बात कौन सी। एक मिनट रुको जरा, ज़ैद साहब
ਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 ਟੱਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ। यही तो बताया, यही तो लिखा है कि मेरे नबियों को और फरिश्तों को खुदा मत बना लेना, उन्होंने टट्टियां आण गियां। कोई कुरान दे विच कोई मिर्जे ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ दस तो दिता ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ कि नबी के मेरे फरिश्तों को खुदा मत बना लेना, उन्होंने टट्टियां आण गियां, उन्होंने शफा हासिल करो, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 50 ਟੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ 50 ਟੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਾਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। 50 ਟੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ 50 ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਦੇ ਮੂਤਰ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਟੱਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਟੋਟਲ ਟੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਉਹੀ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡਰਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜੇ, ਤੋੜ ਹੈ ਜੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢੋ ਹਜ਼ਰਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 130 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੂਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 6 ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਇਹ ਜਮਾ ਤਕਸੀਮ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਹਿਜਰ ਦੀ ਆਇਤ 6 ਤੇ 7 ਪੜ੍ਹ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 78 79 ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। 70 ਉਹ ਚੱਲ 70 ਕਹਿ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ 78 78 ਸਾਲ? ਨਹੀਂ 70 ਕਹਿ ਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। 70 ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਸਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ 70 ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੇ 78 ਕਰਨੇ ਜੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 63 ਕਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 73 ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ 73 ਕਰ ਲਈਏ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰੇ ਫੁਰਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰੇ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਅਗਰ 100 ਦਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅਗਰ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਬਣੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਬਣੀ 73 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ, ਤੇ ਅਗਰ 78 ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ? ਇਹ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੂਰੇ फुरकान ਦੀ 4 नंबर आयत पढ़ो कि दूसरी कौम इसको कुछ आके सिखा जाती है, इसको खुदा ताला ने खजाने क्यों नहीं दिए, इसके साथ फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए? वो गल्लां पूरियां हो गई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ 1,24,000 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਆ ਗਿਆ ਹਿਸਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੇਲ ਹੋ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੇ, ਗਿਣਿਆ ਜੇ ਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਟੱਟੀ ਟੋਟਲ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ? 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿ 73 ਕਿ 78? ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਆ ਨਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਫਾ ਪਾਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਲਾਨਤੁਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਲਾਨਤੁਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਹਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤੀਆਂ ਨੇ।
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਿਫ ਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਉਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਤਫਤ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੰਦੇ ਆ? ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਦੇ ਡੇਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ? ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਲਾਨਤੁੱਲਾਹ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ। ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਫੁੜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਉਹ ਫੁੜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਟਰ ਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਰੁਕੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਵੀ ਲਵੋ। ਇਹਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਇਧਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ मोहतरम ने एक सवाल कर रहे हैं कि मिर्जा जी को जो टट्टियां आई थी 26 मई को साथ फूसियां भी आई थी कि नहीं? चलो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੁਤਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਲਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਫਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁ ਦੁਆ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ? ਹੈ ਬੈਤੁ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਤੁ ਦੁਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ ਸੀ ਬੈਤੁ ਦੁਆ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਲੈਟਰੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੁਫਤੀ ਤੂੰ ਹੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰੀਨ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੈਸਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਪੇਟੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹ ਲਵੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਖਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਓਏ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਚੰਗੇਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਸੂਰ ਮੁਰੱਬੀ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰੱਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਹਬੀਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਫਾ 34 ਖਲਵਤ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਸੂਰ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। है वो क्यों नहीं लिखी? सूरह मायदा की आयत वो क्यों नहीं पढ़ती कि अल्लाह ने बंदियां नु बांदर तो सूर बनाता कि दिन में किसी एक वक्त 1 या 2 घंटे के वास्ते सबसे बिल्कुल अलहदा हो जाते थे। गुरदासपुर में जिस मकान में हम सब मंजिल किए हुए थे उसकी ज़मीन की मंजिल पर दरवाजे से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के लिए इस्तेमाल होता था, मगर पखाना के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थी। बस उस नीचे वाले कमरे को हजूर यानी मसीह मुतर अलैहिस्सलाम ने साफ़ कराया, उसे खूब धोया गया और उसमें फ़र्श किया गया और दोपहर के वक़्त 2 या 3 घंटे के करीब हजूर बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी लगा कर उसमें बैठे रहते थे। बहुत अच्छे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया ये वो करने का। ये उसकी तफसीर बनती है कुरान की आयत की कि नबियों को खुदा मत बना लेना। आगे बात करें। मतलब ये कि लैट्रीन उनको पसंद थी, शुरू से पसंद थी।
हो सकता है, बड़ी बड़ी सोचें आती हैं उसमें। हो सकता नहीं, ये लिखा तो है कि हजूर को लैट्रीन बड़ी पसंद थी, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ? अपनी अपनी नफ्सियात है। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? जी 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 जी, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈ? पूरी जिंदगी टट्टी च बैठे रहे, 100 दफा टट्टी मूत्र करते, मरदे भी टट्टी ची। ਇਹ ਕੀ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈ, ਕੀ ਨਫਸਿਆਤ ਹੈ? ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸੁਨਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਘੱਲਣਾ ਸੀ। ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਵੇ, ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ? ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਸਮਝਾਈ ਆ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਬੀਆਂ को खुदा मत बना लेना। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੁਣਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੁਣਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਨਬੀ ਇੰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਾਜ਼ਅੱਲਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਝੂਠੋਂ ऊपर हजरत आदम भी ऐसे नहीं पैदा हुए थे, बगैर माँ और बाप से पैदा किया, अकेले। ओ मेरी गल सुनो मुफ्ती साहब, तानू कुरान दा कख भी नहीं पता। और लानतुल्लल काज़िबीन, लानतुल्लल काज़िबीन। बाबा आदम दुनिया दे पहले बंदे सन, इन्हां दा खलीफा आंदा, ओ कोई पहले इंसान थोड़ी थे। लानतुल्लल काज़िबीन, लानतुल्लल काज़िबीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जड़वा पैदा हुए, लख दी लानत है भाई। मतलब हजरत आदम जिस तरह पैदा होया, अपनी मां तो ही पैदा होए सीगे, क्योंकि कुरान दा लानतुल्लल काज़िबीन, कुरान दा ए मौजू नहीं आ कि तानू ए दसे कि पहली ओ जड़ी ओ किस तरह आई सी। यार जा साहब, हजरत आदम दी मां दा नाम की सी दसो? ओ नहीं लिखिया होया। की लिखे है? ओ मेरे भाई, नबी आ ही नहीं सकदा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी गल सुन, सारे बाप दा नाम दसो। ओ मेरी गल ते सुनो, तानू बेसिक ही नहीं पता कुरान दी। सारे नबी झूठे साबित हो जांदे आ, सारे नबी झूठे। गल ते सुन, सारे नबी झूठे साबित हो जांदे आ अगर हजरत आदम आसमान तो नाजिल होए होण। लानतुल्लल काज़िबीन। जो कुरान कहता है हमने वो मानना, जो मिर्जा लानती कहता है हम वो नहीं मानेंगे। अगली गल कर। ते फिर ऐसा करो, कुरान ने क्या है कि आसमान जड़ी अल्लाह दी रस्सी है उन्हें मजबूती से थाम लो ते निकलो ते और रस्सी लब के दसो। अगर वो रस्सी नहीं लटक रही ना तो हजरत आदम ने भी नहीं आना सी आसमान। एक गल ते रह, एक गल ते मरबी, एक गल ते रह। सारे नबी झूठे साबित हो जांदे आ अगर हजरत आदम आसमान तो नाजिल होए होण। ओ जेड़ी गल पई हुंदी है उस गल ते रह। इन्नी को गल समझ नहीं आ रही। सारे नबी झूठे साबित हो जांदे आ अगर हजरत आदम दा नजूल आसमान तो होया होवे। कुरान दा अपना नजूल नहीं होया आसमान तो, एक आयत भी नहीं आई। ओदा नाम दसो मैनू मुरब्बी जी। किदे झूठ बन्निया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ते सिर्फ ओदो ना रखे नहीं जांदे सीगे, ओदो ना रखे नहीं जांदे सीगे। हुण दसो, ओदो नाम रखे नहीं जांदे सीगे। मिर्जा कादियानी पता किंज पैदा होया सी? चलो मैं मुख्तसर दसां तुहानू। मिर्जा कादियानी कहंदा मेरे नाल मेरी भैन जन्नत पैदा होई है। मां दी उस पे दे विचों पहले मेरी भैन दा सिर निकलिया, बाद च ओदे चड्डियां दे विच मेरा सिर फसिया सी ते ओरल सैक्स मैं कर रहा सी, ओदी पे नू मैं चटदा सा पिया ते फिर मैं निकलिया ते इस वजह से मैं खातमुल औलाद ठहरा। हां जी, दंदियां कड्डो जरा, दंदियां कड्डो। क्यों? क्योंकि मेरे नबियों को खुदा मत बना लेना, उन्होंने ऐसा नहीं पैदा होना सी। चल गल समझ आ गई? थोड़ी गल समझ आ गई? इंसान इंज पैदा होया ही नहीं।
ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਮਰੂਦ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਝੂਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਲੇਟਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿਲਲਾ ਕੁਰਾਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਦੈਸ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਦੇ ਤੇ ਹੋ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਅੰਮਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਹਮ ਮੱਕੇ में मरेंगे या मदीने में ਲਾਹੌਰ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਏ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਖੁਦਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਕਿ ਹਮ ਮੱਕੇ में मरेंगे या मदीने में लेकिन ਉਹ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਰ ਗਿਆ ਲੈਟਰੀਨ ਹੋਰ ਚਲੋ ਲਾਨਤੁਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਲਾਨਤੁਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਲਾਨਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਾਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ کہ حضرت بابا آدم جڑے نے وہ پہلے انسان نہیں وہ کھوتی دے بچے جا کے قرآن پاک پڑھو 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 گھر دے بیٹی لنکا ڈائے یا مربی جی تواڈے گھر دے بھی جاندے نے اوے اے جھوٹا ہے جھوٹا نہیں میں مرزوارے سیالکوٹ کینٹ والے دے وچ بھی خادم رہ چکے ہوں مرزوارا جڑا کراچی دے وچ یونیورسٹی روڈ تے پٹی پارک دے سامنے جا کے میرا پتہ کرا لا میں اوتھے بھی خادم رہ چکے ہوں جدا کرایہ بھی غیر احمدی پہ دیندے نے سوری جدا خرچہ جڑے مرزوارے دا غیر احمدی پہ دیندے نے گل تانوں سمجھاتی جس احمدی نو اے نہیں پتا نا کہ حضرت آدم دا نزول آسمان تو نہیں ہویا وہ احمدی نہیں آ گل سمجھ آئی میں تانوں دس دیتی کہ قرآن دی سچائی دا ایک ثبوت ہے وا کہ قرآن کاغذاں تے نہیں نازل ہویا اگر تسی اے ایمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ صاحب آپ معذرت خواہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ شاہ جی آپ ایک شاید نقطہ بھول گئے یہ وہ اس قرآن کی بات کر رہا ہے وہ جو مرزا نے نہیں کہا تھا میرے منہ کی باتیں یہ مسلمانوں والے قرآن کی بات نہیں کر رہا حضرت یہ مرزا کے منہ کی باتوں کی بات کر رہا ہے عمر سٹریم نو ذرا سنبھالیا جے لوک ہوز ٹاکنگ 1200 سال تک تسی قرآن دا ترجمہ نہیں کیتا اج تسی آگے جے تقریر کرن کتھے سگے تسی 1200 سال تک مسلمان کتھے جی شاہ جی ایسا ذرا تھوڑا سا حساب کتاب نہ کر لیں مرزا کا کتنا ٹائم جو ہے وہ بیت الخلاء میں گزرا عمر وقت طے کر لو انہاں نے تانوں بولن نہیں جے دینا 1 منٹ اے بولن 1 منٹ تسی بولو اینج کر جی شاہ جی ضرور نبی بھی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر ہی رہتا ہے جتنے انسان بابا جی ایک منٹ کھلو جو ایک منٹ کھلو جو گھنٹے کا تسی لاجک لائیے مینوں دسو لاجک ہوندی کی ہے لاجک یہ ہوندی ہے کہ جڑا بچہ ہے نا وہ ماں دے ٹھڈ دے اندر موتر بھی کردا ہے تے پخانا بھی کردا ہے وہ کتھے جاندا ہے چلو جی نویں نکل آئی جی سائنس لو نویں سائنس نکل آئی ایڈے تسی ہوشیار لاجک سمجھاؤ اللہ دی رسی جڑی لاجک بچی سی بابا جی سادہ جا سوال سی لاجک کنوں کہی دا لاجک کنوں کہی دا ہاں لاجک کنوں کہی دا تانوں جدوں بندے نو گل سمجھ آ جائے نا اونوں لاجک کہی جائے دے تہاڈی گل چپیڑ انڈرسٹینڈنگ کہندے نے او بابا جی اونوں انڈرسٹینڈنگ کہندے نے اے کیڑی وکری لینگویج کڈی جے اونوں انڈرسٹینڈنگ کہندے نے ایک ویڈیو میں بنائی ہوئی ہے اپنے لاجک دسنی سی لاجک بابا جی لاجک دسنی سی لاجک سمجھاواں تانوں لاجک اچھا کس چیز کو لاجک کہتے ہیں لاجک کا مطلب کیا ہے جی ہاں سن دسنا لاجک کی ہوندی ہے جی میں منتظر ہوں ہاں لاجک سمجھا دیئے تانوں لاجک کی ہوندی ہے
वाला जवाब नहीं लेके आए सो जी जी मुफ्ती साहब दी भी समझ आ जाए ए देखो एक मैं शेप नहीं, बाकी चीजों का आप जवाब ले आए थे, इस सवाल का जवाब नहीं लाए थे कि लॉजिक क्या होती है। हाँ हाँ ए एक शेप है वो बंदे ने एक लॉजिक समझाई, मैंने लॉजिक पूछी है, शेप नहीं पूछी। शेप मुझे भी पता है, शक्ल वो कहते हैं उस डायग्राम की जो आपने शक्ल बनाई हुई है। हाँ हाँ मैंने लॉजिक पूछी है, लॉजिक क्या होती है। सही यार मैंने 1 मिनट दे दे ताकि लोगों को तो पता चल जाए। मेरे वालों 2 ले लो, लेकिन लॉजिक दसो ना। हाँ लॉजिक ही दसन वाले ना, असली लॉजिक, मैथमेटिकली प्रूवन लॉजिक। वो कहता है कि बच्चे ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਲੱਭਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ नहीं है। मैथमेटिक्स की जगह इंग्लिश में समझाएं, फारसी की समझाएं, लॉजिक समझानी है। लॉजिक क्या होती है? मैं वही तो समझा, 1 मिनट तो चुप रहेगा तो समझावांगा ना। वो बच्चे को समझाता है उस्ताद कि अगर इस जगह का एरिया मालूम करना हो तो इसका कोई फार्मूला हमने इजाद नहीं किया हुआ, हमको नहीं पता। तो ये कहता है, मुझे पता, मिर्जा साहब ने बताया था। 1 मिनट बात पूरी होने दो। कहता है ये जो 4 है ना, ये 4 ये बन जाते हैं दायरा। तो इस सर्किल का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो उस सर्किल में से इस पूरे दायरे का उसको माइनस। मैंने लॉजिक पूछी थी, मैंने ये नहीं पूछा था कि सर्कल का जो है वो एरिया कैसे फाइंड करना है या उसका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करना है। मैंने लॉजिक पूछी थी। लॉजिक किस चीज को कहते हैं? तो वो ये बता रहा है कि हमको ये, चले ये बता दे, मुझे ये बता दे, मुझे ये बता दे, हमको एक शख्स को जो बनी है उसका पता है, उसमें से उसको माइनस कर दो तो एरिया का सुन भी लो ना। ये लॉजिकली मैथमेटिकली प्रूव है। बाबा जी सुन भी लो ना। हाँ बाबा जी सुन भी लो ना। और मैनू ये भी लॉजिक दसनी चाहिए मुझे। अब आपने ये लॉजिक बतानी है। एक इंसान अपने दिन का 3 से 4 घंटा तो वो है जो उसने किताबों में लिख दिया, उसके अलावा भी वो कहता है कि 100 दफा 100 यानी 100 + 100 200 दफा वो बैतुल खला में जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा बस हुण हौसला रखी, एक मिनट दई, बोली ना। सूरह हिजर दी आयत सुन नंबर 6 ते 7। और उन्होंने बड़े जोर से कहा है वो शख्स जिस पर जिक्र उतारा गया है यकीनन तू दीवाना है। अगर तू सच्चा है तो क्यों मलाइका को हमारे सामने नहीं लेकर आता? मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मैं दिन में 100 दफा मैं बैतुल खला जा रहा हूँ। 100 + 100 200 दफा। मैंने आपसे पूछा मुझे ये लॉजिक बताएं, ये 200 दफा मिर्जा साहब बैतुल खला क्यों जा रहे हैं? वो अब मुझे इसकी लॉजिक बताओ कि हजरत और उनको बैतुल खला से मोहब्बत का नजूल होता था तो बैतुल खला से उनको मोहब्बत इतनी थी कि मरते हुए भी बैतुल खला में। लोगों ने ये एतराज क्यों पेश किया? अगर तू सच्चा है तो 1440 मिनट दिन में होते 1440 मिनट। 100 बड़े और 100 छोटे रख लें। छोटे में लगे 2 मिनट कम से कम, बड़े में लगे जी 5 मिनट कम से कम एवरेज रखते हैं। 130 ये बने जी 7 मिनट। मैं 130 7 मिनट ज़रबे 100 टोटल हो गए 700 मिनट। अच्छा जी ये 700 मिनट वो है जो मिर्जा साहब बैतुल खला में गुजारते थे। हाँ। दिन में होते हैं टोटल 1440 मिनट। ये 700 मिनट तो उनके गए बैतुल खला में। अब वो जो बाकी बचे 740 मिनट उनमें उन्होंने हाथ भी धोने हैं। बकौल उनके वो जो गर्म पानी वाला लोटा होता था, हाथ जल जाता था, उसको टकोर भी करनी है ताकि उसकी जरा चलन को सुकून आ जाए। और बाकी भी जहां जहां उनको गर्म पानी फिरा होगा वहां भी उन्होंने टकोर करनी होती होगी। अब फिर उसके अलावा गुड़ भी खाना है। मुझे ये बता बल्कि गुड़ नहीं खाना, गुड़ की जगह वो मिट्टी का धेला खाना है जिससे वो सफाई के लिए इस्तेमाल करते थे दूसरी जेब वाला। जी। अब इसी के दौरान उन्होंने तहरीरें भी लिखनी है। ऐसे ही है। तो जरा इसका मुझे कोई टाइम टेबल बना के बताए ना किस तरीके से वो इसको मैनेज करते थे, क्योंकि 700 मिनट आउट ऑफ 1400 मिनट उनके वो टटीब शाब में गुजर रहे हैं। जी। तो सूरह हिजर में ये जो लॉजिक भी समझानी है आपने कि सामने क्यों नहीं लेकर आता? मियां जी मैं मिर्जा साहब की लॉजिक पूछ रहा हूँ, आप किधर को भाग रहे हैं? हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया मिर्जा साहब की लॉजिक बताइए ना। ये कौन सी लॉजिक है कि हर 5 मिनट बाद 7 मिनट वॉशरूम में लगाने हैं? अगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेत में इतनी ताकत थी तो उसके बाद तो जहाद हराम हो जाना चाहिए था। मियां जी, ओ बाबा जी, ओ बाबिया तो इतना जोर ना ला टेम्पर पार जे गई।
इन्ना जोर ना ला पैंपर भर जाएगा ही। ओ नहीं गम ना कर, मेरे ते रोज दे काम ने यार है, केड़े चक्कर ते लगे रहे तू। कुरान ने ए जड़े एतराजात तुसी जड़े एतराजात तुसी पेश कर रहे जे ओ कुरान दी आयात ने नबी दे खिलाफ वो शजीद पैंपर दी तादाद पता करनी है, दिन दे किन्ने भरदा इमाम दो लोग तो कितनी देर से पढ़ जा सकते सर। अपने मुक्तदियां नु सिखा रहे होंदा है। Please, everyone quiet. Everyone, Zahir साहब प्लीज 2 मिनट, Zahir साहब 2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से, सवाए Zahir साहब। ओके Zahir साहब, आप माशाल्लाह जो है मेरे ख्याल में कादियानी साहब जो है उनके पैरोकार, उनके मानने वाले, ऐसे ही है जी जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ, आप एक आयत पेश कर रहे हैं, ठीक है? ये आयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानते हैं जी, उन पे कोई इतराज तो नहीं है आपको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ये बात नहीं है, देखिए आप बड़ा छोटा सा सवाल है, यस और नो का नबी मानता हूं। तो आंसर यस और नो। जी जी, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? डू यू गॉट एनी प्रॉब्लम? नो सर, देखिए ये यहूदी वाली हरकतें ना करें, सीधी सी बात पूछी है, क्या आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी बात से कोई इतराज है? यस और नो? वो इंसान थे, इंसान थे, जो भी थे, ये बात मैं नहीं कर रहा। आपको क्या उनकी नबूवत पे या उनकी किसी भी बात पे कोई एतराज है? यस और नो? मैं तो उनकी कहानी नहीं सुनानी, यस और नो समझता हूँ, मैं तो उनकी नबूवत को मोहर समझता हूँ। आगे चलिए। आप क्या समझते हैं? ये सवाल नहीं किया आपसे सवाल बड़ा पूछ। आप मर्द है ना माशाल्लाह? जी जी जी, मर्द है आप? इसका जवाब देना आपने। जी जी, इसका जवाब देना है। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में कोई शक है आपको? बिल्कुल कोई शक नहीं है, इसी तरह ईमान है जिस तरह आपका है, बल्कि उससे अच्छा है। आगे चलें। माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा आपसे बड़ा छोटा सा सवाल है मेरा, आपसे पढ़ा लिखा सवाल है, ठीक है? कि क्या आपको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात पे कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको तीसरी बात आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, और मैं बताना चाह रहा हूं बल्कि आपको, कि हमें आपके जो नबी है ना, ठीक है ना, हम उनकी इज्जत करते नहीं करते वो अलग बात है, हमें उनकी हर बात पे एतराज है। इससे ज्यादा बात दूसरी और तीसरी चौथी कोई है ही नहीं, हमें उनकी हर बात पे एतराज है। ठीक है, ये हमने पढ़े लिखी वाली बात कर दी, ये ना पढ़े लिखी वाली बात कर दी। अब मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। ठीक है, नहीं आप वजह सुन लेना, आपको भी समझा दें। एक मिनट जरूरी है यहाँ पे, 1 मिनट सुनाएंगे। कुरान में सैकड़ों आयात वो हैं जो कि आपको सिखाई गई हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिजिकल जिंदगी में लोगों ने वो एतराजात, जो आपके जो एतराजात हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर हैं, उनसे 100 गुना एतराजात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कर दिए गए, और उनको कुरान ने इल्हाम बनाया है। अब मैंने आपसे अभी पहले सवाल किया था, ज़हीर साहब, वही मैं बता रहा, अभी मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपसे तो कोई इतराज नहीं है। जी साहब रुकिए जनाब, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। ज़हीर साहब, आप हमारे मुकदमे को मजबूत कर रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं, या मुझे नहीं समझ आई। सबसे पहले वो कह रहे हैं, वो ज़हीर कह रहा है जी मैं मिर्जा कादियानी का फॉलोवर हूँ, तो आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर से अब जब वो ये कह रहा है जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मिर्जा कादियानी से ज्यादा इतराज़ात हुए हैं, तो फिर भी आप कह रहे हैं आहो एनजी है। कुरान की आयत है, मैं उनका इनकार कैसे कर सकता हूँ? मुझे जवाब देना ज़हीर साहब आप। हाँ, ये तो कौन से इतराज़ात है यूद सारा ने किए हैं, मुशरिकीन ने किए हैं? कुरान खोल लें, सूरह फुरकान खोल लें, सूरह हिजर खोल लें, फुरकान उसके अंदर है कि ये मिर्जा कादियानी से ज्यादा इतराज़ात हुए हैं। बिल्कुल मेरे भाई, वो तो कुरान की आयत है। वो मुसलमा कज़्ज़ाब के हमायती और फॉलोवर भी देते थे। असवद अनसी के जो फॉलोवर थे वो भी यही कहते थे कि देखो जी सच्चे नबियों के ऊपर बड़े बड़े इतराज़ात हुए हैं, और फलान नबी के ऊपर भी इतराज हुए हैं। अगर मुसलमान कज़्ज़ाब के ऊपर इतराज हो गया तो कौन सी बड़ी बात है? वो मुसलमान कज़्ज़ाब आपको बेसिक ही नहीं पता। मुझे ये बताओ, मुसलमान कज़्ज़ाब था कौन? आपके ईमान के मुताबिक वो मुसलमान था, और कभी आपने ये सोचा कि उसके साथ 50,000 का लश्कर क्यों था? हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की, बेसिक्स किसको कहते हैं? और सुनो तो सही, जब हिजरत की तो टोटल मुसलमानों समझाई नहीं, बेसिक समझा दें 10 साल में 480, और उसके साथ बेसिक्स किसको कहते हैं?
50,000 का लश्कर। बाबा जी कितने बेसिक्स मुसलमान जो है किसको उसके साथ कहते कैसे हैं? हो गए? वो बगावत थी, उसने नबूवत का बाबा दावा जी कहाँ से बेसिक्स देना था? किसको कहते हैं? है बेसिक्स किसको सर कहते मैं हैं? जवाब दे रहा हूँ बेसिक सर, मुझे बताई सर तो है मैं कि आप अगर गलत हजरत करें आदम का हम नजूल याद आसमान से हुआ है तो नाउजुबिल्लाह सारे नबी झूठे हैं। सर 2 मिनट दे, मैं इसको बाबा जी इस बात का बेसिक्स जवाब दे किसको रहा हूँ कहते सर, हैं? मैं इस बंदे वजीर की बात का साहब जवाब दे रहा बता मेहरबानी आप कीजिए, मेहरबानी यार मुझे वजीर साहब आप मेहरबानी बेसिक आपके बता दो मुकदमे दी। हमारे को जो है ना बिल्कुल उसका कचूबर निकाल के रहा। मेहरबानी मैंने आपको माजरत के साथ नीचे उतारा है। वो तो कोई बात आप नहीं, कोई बात नहीं, और मेरी बात ऐसे को सुने। तो आप देखें सारे अकीदों को वो आपकी हिमायत करने वाले कोई देखें मुझे तो नहीं मैं समझ आ रही कौन है ये। मैं जब तो ये बहरहाल कहता हूं आप कि हमें आपको, हमारे सवालों के जवाब दीजिए जनाब। और मेरी बात सुनो, 1,24,000 अंबिया का जब आप जिक्र करते हैं, जो 28 उमर नबी जो गल कुरान करनी में है आए जी। हैं, उनके अंदर आपकी बाबा अंडरस्टैंडिंग जी ऐसी है कि मिर्जा साहब अपनी किताब में ये तहरीर कर रहे हैं, फिर उनकी औलाद। जी जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अहमद भाई क्या हाल चाल है? खैरियत? यार मैं पहले भी आया था हमारे साथ, वो मुझे जरा काम के सिलसिले में जाना पड़ गया। ये ज़हीर साहब पहले के मौजूद थे, इन्हें मैं सुन रहा था, बार बार कुरान कुरान कह के एतराज़ कर रहे हैं, बिल वास्ता भी और बिला वास्ता भी, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुरान पर भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी। मैं इन्हें सिर्फ एक छोटा सा एक सवाल है, एक छोटा सा, कि भाई पहले कुरान की तारीफ करें। आप कह रहे हैं कुरान सफ़ों पे नहीं उतरा, फलां पे नहीं उतरा, ठीक है, ये आपकी सारी तशरीहात और आपकी एक्सप्लेनेशन सारी बाद में मानेंगे। पहले आप डेफिनेशन करें कि कुरान कहते किसे हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी की डेफिनेशन के मुताबिक, तारीफ के मुताबिक, मिर्ज़ा कादियानी की मुंह की बातें कुरान हैं। अगर आप उसकी मुंह की बातों की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसके मुताबिक उस सेंस में बात करेंगे, लेकिन आप पहले कुरान की तारीफ तो हमें बता दें कि कुरान की तारीफ क्या, और कुरान की तारीफ करें। और ये यहाँ पे मैं ऑन और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि मैं इन्हें $1,000 इनाम दूंगा कि अगर ये कुरान की बिल्कुल ठीक तारीफ कर दें। ओके ओके। कुरान की तारीफ क्या है, पहले तारीफ करें ना, ताकि हमें पता चल जाए कि जो इस तारीफ पर चीज पूरा उतरेगी वो कुरान है। लफ्जी माने ये है कि बार बार पढ़ने वाली चीज। और मेरी बात सुनो, बस हो गया, बात समझ में आ गई। बार बार पढ़ने की चीज। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नाजिल हुई तो आपकी क्या हालत हुई? उनको मशवरा किसने दिया? कुरान की तारीफ ओए मेरी अब एक मिनट से समझ में आ गया। उनको मशवरा किसने दिया? हजरत खदीजा ने मशवरा दिया कि क्या करना है आगे। कुरान पाक की तारीफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिब्राइल का पता भी नहीं था कि जिब्राइल है कौन। सुन ले भाई, बात सुन लो। तारीफ की खसूसियत ये होती है कि तारीफ मुख्तसर और जामे होती है। तारीफ के दो जो है ना लाजमात जो है वो दो हैं, ठीक है। एक वो उसके अंदर इख्तिसार होगा, मुख्तसर होती है, और दूसरा वो जामे होती है, ठीक है। ये आप तफसील बता रहे हैं, ये आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, डेफिनेशन नहीं कर रहे। मैंने डेफिनेशन पूछी है कुरान की, वो मुझे बताओ। बार बार पढ़ने वाली चीज को कुरान कहा गया। ये आपने कहां से कुरान की डेफिनेशन ली? अब मैं जो लोग तो रात को बार बार पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल को बार बार पढ़ते हैं, तो ये तुम्हारी तारीफ के मुताबिक बाइबल कुरान बन जाएगी। वो उनका कुरान बच्चा फिजिक्स की किताब को रोजाना 10 घंटे पढ़ता है, उसके वो कुरान बन जाएगी। वो उनका कुरान है। साई हो गयो, बेवकूफ हो गयो, तारीफ करो। कुरान है। उल्लू का पट्टा कब का एतराज करी जा रहा, कुरान की तारीफ का ही नहीं पता। कुरान की तारीफ करो, फिर बात आगे करो। तुमने कौन से 4 चांद 1200 साल तक तुमने भाई कुरान बता दिया था? करो, 1200 साल को छोड़ो, पहले कुरान की तारीफ करो, बाद में आके बात करना ना, ताकि हमें पता चल जाए इस तारीफ पर, इस असूल पर जो किताब उतरेगी वो कुरान है। उस पर तुम एतराज करो, हम जवाब देंगे, हम मिर्जे पे एतराज करेंगे, तुम जवाब देना, इतनी कौन सी बात है। तारीफ तो करो। इल्मी यतीम यहाँ के बैठ के जब लगा देते हैं ना, आगे मेरी बात सुन। अच्छा ये बताओ, क्या कुरान किताब है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुरान की तारीफ करो, तुम मुझसे काउंटर क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि क्या कुरान किताब है? ओए अकल के अंदर मेरी बात सुनो। गुफ्तगू का, मुकालमे का, डायलॉग का तरीका ये होता है कि अगर आपसे कोई सवाल करने वाला सवाल कर रहा है तो आप उसका जवाब दे के आप पे हक है कि आप उस पर सवाल कायम करें। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, सवाल पे सवाल करते जा रहे, काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो। भाई पहले जवाब दो। मैं कह रहा हूँ तुम पिछले 1.5 घंटे से अवाम को बेवकूफ फुद्दू बना रहे हो, जो कि बढ़ नहीं रही अवाम। तुमने 1500 साल फुद्दू बनाया है, तुमने 1500 साल फुद्दू बनाया। कुरान की तारीफ तुम्हें पता नहीं है। तुम कभी कहते हो कुरान जो है वो कुरान किताब की शक्ल में नाजिल नहीं हुआ, कुरान इल्हामात हैं। बातें करते जा रहे हो। कुरान हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जिब्राइल का पता भी नहीं था,
नोफल ने बताया कि जिब्राइल कौन है, हजरत खदीजा के मशवरे पे आप गए उससे मिलने, कि मेरे साथ क्या हुआ है, बातें तुम इतनी कर रहे हो। गंजू इल्मियों का आता है कि तुम्हें कुरान पाक की डेफिनेशन नहीं पता और तुम आए हो हमें मिर्जा कादियानी वो इतनी प्यारी प्यारी लैंग्वेज में बोल के तुम कोई अक्लमंद बन जाओगे। जब बात करते हैं तो तुम चीखते हो कि मिर्जा कादियानी की सीरत और किरदार पे क्यों बात कर रहे हैं, कुरान हदीस पे बात करें। अब हम कुरान हदीस पे क्योंकि सीरत और किरदार तो जापानियों की भी दुनिया में मानी जाती है, जाएं जाके उन पर ईमान लेकर आ जाएं। तुम उस पर क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ईमान की वजह से उनके पड़ोसी हमसाए उनके दोस्त ईमान लेकर आ गए थे? सबने इनकार कर दिया। मैं कह रहा हूँ बाबा थोड़ा यानी कि मौत पे बाबे जोर थोड़ा ला पेपर पर जाना ही प्रोग्राम आज का हो रहा है मिर्जा कादियानी की मौत पे, उस पे तुमने कोई कमेंट पास नहीं किया। यहाँ आके कुरान भाई कुरान की डेफिनेशन करो ताकि हम उस डेफिनेशन पे परखें कौन सी किताब कुरान है, तुम्हारा एतराज लेंगे। अब तुम्हें कुरान इतने बड़े तो तुम जाहिल हो, इतने बड़े तो तुम जाहिल हो कर रहे हो, तुम्हें उसके बारे में ही नहीं पता और ये तुम्हारी इल्मी काबिलियत है। तुम तो टाइम पास करने आ गए हो, तुम तो बेवकूफ हो, तुम बुढ़े हो, तुम लोग को गवर्नमेंट पैसा दे रही है वहां बैठ के अल्लाह का शुक्र आसमान से नज़ूल यहाँ आके तुम हमारा टाइम पास कर रहे हो। आसमान से नज़ूल एतराज करना होता है ना, जब हम मिर्जा कादियानी किसी इबारत पे एतराज करते हैं ना, तुम उससे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप कुछ भी पूछो, हम उस पर मुकम्मल गिरफ्त रखते हैं और क्योंकि तुम करेंगे क्योंकि तुमने पुराने नबियों को खुदा बनाया हुआ है, तुमने नबियों को खुदा बनाया हुआ है। बेटा 9वीं के जब पेपर हो रहे थे बच्चे फिजिक्स की किताब को ज्यादा पढ़ते थे, उनके नजदीक क्या वो कुरान हो जाएगा? बेवकूफ बंदे हो, अकल तुम में है नहीं, समझ नहीं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा का तुम लोग मिसदाक हो, समझ तुम्हें आनी नहीं। यही बात हम पहले कह रहे थे, तुम लोग तो जिन कुरान का जो कुरान का नबियों का जिक्र कुरान में है उनमें इतना तजाद पाया जाता है कि कुरान में नाउजुबिल्लाह तुम लोग खुद तजाद पैदा कर देते हो। ये तुम्हारी औकात है, यही तो मैं बता रहा हूँ। यही तो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आके बताया है कि नबी होता क्या है। जितने तुम एतराजात कर रहे हो वो यही एतराज बनता है, यही तफसीर बनती है। नबियों को खुदा मत बना लेना। अच्छा वैसा है कि मेरा जुम्मा टाइम हो गया और तो मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है, 1 बज गया वुजू करते करते, तो इसलिए मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत मजा आया। दुनिया जानती है तू भागेगा, तेरा भागने का टाइम है अब, हमें पता था। सही है, तू बोलता आसमान से नज़ूल है, लानतुल्लाह काज़िबीन। जो हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम थे, जो उनको आखिरी सबसे पहला दुनिया के पहले सबसे इंसान नहीं समझता, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मैं उस मिर्ज़ा कादियानी पर भी लानत भेजता हूँ। एक मिनट जो अंबिया अल्लाह के सच्चे अंबिया के ऊपर बकवास करता था। उमर भाई बेवकूफो बाबा कुरान की तारीफ नहीं बता बेवकूफो जिसने अहले बैत पर बकवास की वो भी लानती था। सबसे बड़े तुम खुद हो, पूछो क्यों? क्योंकि जिसने अहले बैत के ऊपर जो भौंका वो लानती था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तखलीक उस वक्त कर दी गई जब आदम को गूंदा जा रहा था। जोर नहीं लगाना बाबा, इतना जोर नहीं लगाना। दूजा तेन इस टाइम किधरों लभना नहीं, जुम्मे दा टाइम ही। तुम 1,24,000 दफा कादियानी हो। बात समझ में आ रही है कि तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 1,24,000 लोगों पर ईमान लेकर आए हो। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाबे जोर नहीं लगाना, टेम्पर गंदा हो जाएगा। बाबे टेम्पर नहीं लगना, तुसी उस टेम्पर दे नाल शफा हासिल करना ਤੁਹਾਡਾ ईमान आ। ओके लानतुल्लाह काज़िबीन, लानती भाग गए। अब वापस आ, ये तो औकात है कादियानियों की, इनके मिर्जे के ऊपर बात करो जिसकी कोई सीरत ही नहीं थी। ये अल्लाह के सच्चे अंबिया के ऊपर बकवास करते हैं, ये देख रहे हो। इनका मिर्जा जो मफरूर है वो लानती बोलता बाबा आदम जो है वो पहले इंसान थोड़ी थे। वो जो कुरान कहता है जब वो पहले इंसान थे